35. From the following data, calculate PV ratio when sales are rupees 20,000, new break-even point if selling price is reduced by 20%, fixed expenses 4,000 and break-even point is 10,000. I think ये भी हुआ है क्या? इस सेम हुआ है शायद से हमारा. प्लीज चेक. ये 20,000 उसमें क्वेश्चन एंड में था और ये इंफॉर्मेशन पहले थी. Problem number 21. From the following data, find out sales and new break-even sales if selling price is reduced by 10%. और इसमें क्या है? सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 20%. उसमें क्या है? आप लोग कर लेंगे. Is it? So this is for homework. Number 35 is homework. Come to the next, number 36. Number 36. The projected output of a plant when sold would earn rupees 70,000 in sales income to the Mixers Limited. The variable cost for this production volume would be 30,000. Fixed cost are rupees 20,000. Determine the following. Break-even point of the company, profit or loss to the company on sales of rupees 49,000 and 28,000, and the amount of sales that will enable the company to earn a net profit of rupees 28,000. The projected output of a plant when sold would earn rupees 70,000 as sales income. Your sales is 70,000. Variable cost for this production would be 30,000. Fixed cost 20,000. Determine the following. Yeah, in this case, sales 70,000 है, variable cost 30,000. So your contribution is 40,000. If the contribution is 40,000, what is the PV ratio? Your contribution is 40,000, your sales is 70,000. 57.14. That is 40,000 by 70,000 into 100. 57.14. Yeah, you have to find out break even point. तो break even point कितना आएगा? Fixed cost दी आपको 20,000. नहीं, मैं सिर्फ ओरली डिस्कस करने वाला हूँ, ये होमवर्क में आपने करना है. So 20,000 divided by 57.14%. 30, exact 35,000. ये हो गया आपका break even point. Then profit and loss to the company on sales of rupees 49,000 and 28,000. तो 49 28 में प्रॉफिट आपको निकालते आएगा and the amount of sales that will enable the company to earn a net profit of rupees 28,000. 28,000 प्रॉफिट के लिए हमारा कितना सेल्स होना चाहिए? मतलब इसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन. क्योंकि 28,000 प्रॉफिट चाहिए तो पहले 35,000 आपको फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी पड़ेगी. सो 28,000 प्लस 35,000 विल बी 63,000. करो वाला कैलसी पर फिर 63,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 57.14% ना. 1,10,256 आएगा करते हैं. यस डेफिनेटली. नंबर 36 इज फॉर होमवर्क. फिक्स कॉस्ट तो मैंने कितनी ली? 35 ली क्या? टाइम प्लीज. सो इट इज 20,000 और प्रॉफिट कितना था हमारा? 28. ओके, सो 28 प्लस 20 48,000. ओके, 48,000 डिवाइडेड बाय 57.14%. 84,000. रिवाइज आंसर इज 84,000. ठीक है, चलिए आगे नंबर 37. A company produce single product with sales for rupees 20 per unit, variable cost rupees 15 per unit and fixed overhead for the year rupees 6,30,000. Calculate sales value needed to earn a profit of
10% on sales. Profit needed, calculate sales value needed to earn a profit of 10% on sales. Calculate sales price per unit to bring BP down to 1,20,000 units. Calculate margin of safety sales if profit is rupees 60,000. Okay, this is what November 2007 problem. इस बार रिक्वायरमेंट क्या है देखिए, कैलकुलेट सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स. ओके, सेलिंग प्राइस आपको दी है, वेरिएबल कॉस्ट आपको दी है. कैन यू फाइंड आउट द बेसिक कंट्रीब्यूशन? निकालो भला, नहीं लिख के करो. सेलिंग प्राइस रुपीज 20 लेस वेरिएबल कॉस्ट 15, so your contribution is rupees 5. अब उन्होंने क्या दिया, कैलकुलेट द सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स. मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? 10% ऑन सेल्स. नाउ सी दैट required profit, it is 10% on sales. ध्यान दीजिए, मत लिखिए आप लोग. See what is my selling price? It is 20. What is my profit? Profit कितना चाहिए हमको? 10% of 20, that is rupees 2. इसका मतलब है 20 रुपए सेलिंग प्राइस में से 2 रुपए मेरे प्रॉफिट के हैं. इसका मतलब रुपीज 18 is what my allowable total cost. Allowable total cost per unit. इसका मतलब है पर यूनिट की मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी फिर? 18, क्योंकि 20 रुपए में 2 रुपए प्रॉफिट के फिक्स हो गए. 18 रुपए मेरी कॉस्ट मुझको मैनेज करनी है. उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 15 लेस वेरिएबल कॉस्ट per unit is 15. Therefore, fixed cost per unit कितना? 3. Total fixed cost कितनी है? 6,30,000. Therefore, number of units to be sold, it is 6,30,000 divided by 10 divided by 3 is 2,10,000 units. Got it? आप चीज उसको क्रॉस वेरीफाई करके देखिए. 2,10,000 यूनिट, अगर 2,10,000 यूनिट हमने सेल किए तो 2,10,000 इंटू 20 सेल्स विल बी 42 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट 2,10,000 इंटू 15 कितना? 31,50,000. Therefore, contribution 10,50,000 less fixed cost कितनी है? 6,30,000. Therefore, profit 4 lakh. Our profit should be 10% of sales. ये हमारी रिक्वायरमेंट थी. ये उसका हो गया क्रॉस वेरिफिकेशन. ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया. बेसिकली सेलिंग प्राइस आपको दी है रुपीज 20 और रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा प्रॉफिट होना चाहिए 10% ऑन सेल्स. इसलिए मैं डायरेक्ट टोटल सेल्स निकाल ही नहीं सकता इस केस में.
लेकिन एक है, अगर 20 रुपए सेलिंग प्राइस है तो 2 रुपए मेरा प्रॉफिट फिक्स है। इसका मतलब है एक यूनिट के लिए 2 रुपए प्रॉफिट अगर मैं छोड़ दूं तो इसका मतलब है 20 - 2, एक यूनिट के लिए मैक्सिमम कॉस्ट मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ₹18। 18 रुपए पर यूनिट की मेरी कॉस्ट हो गई, जिसमें से 15 रुपए मेरे वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब है अभी भी 3 रुपए इज अवेलेबल फॉर फिक्स कॉस्ट, और टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 6,30,000। सो 6,30,000 पर यूनिट 3 रुपए मेरे पास है, तो 6,30,000 डिवाइडेड बाई 3, अगर मैं 2,10,000 यूनिट अगर बेचूंगा, सो एवरी ईयर आई विल गेट ₹3, आई कैन कवर माई फिक्स कॉस्ट। एंड अल्टीमेटली अगर 2,10,000 यूनिट अगर सेल किए तो दिस इज व्हाट द आंसर। समझ में आ गया? यस, प्लीज राइट डाउन दिस। दोनों 2,10,000 units. UAO. ये जो ये आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप चाहिए तो लिख लो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। हो गया सबका? चलिए, अब उसमें अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए। सेकेंड था, कैलकुलेट द सेल्स प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग बीपी डाउन टू 1,20,000 यूनिट्स। अब मुझे ब्रेक इवन पॉइंट सेट करना है 1,20,000 पर। ब्रेक इवन पॉइंट आई वांट 1,20,000 यूनिट्स। सो व्हाट शुड बी माय सेलिंग प्राइस? कैसे करना होगा? यस,
अरे नहीं, ऐसे नहीं आएगा. What you have to do? Total cost find करेंगे. Variable cost and fixed cost. For 1,20,000 units. yes, what you required at 1,20,000 unit. अगर मुझको break even point चाहिए, what is the break even point? Break even point मतलब where the total sales is equal to total cost. So just find out the total cost for 1,20,000 unit. 20 lakh total cost मतलब variable plus fixed. Find out that cost. Divide कीजिए 1,20,000 से, जो आएगा that is your selling price. 20.25. So find out, write down, note. Note at BP sales is equal to total cost. Sales is equal to total cost. BP 1,20,000 units. Therefore, total cost at BP, in that variable cost मेरे साथ साथ में लिखिए आप लोग, 1,20,000 into 15, 18 lakh. Fixed cost. Fixed cost तो फिक्स ही रहेगी ना, it is 6,30,000. Therefore, total cost 24,30,000. Therefore, selling price per unit 24,30,000 divided by 1,20,000 units. 20 point. तूने 25 क्या बताया था? अच्छा, मैंने सिर्फ 25 पकड़ लिया फिर. ओके, 20.25 rupees, 20.25. So इस बार बीपी फिक्स है 1,20,000. जब बीपी फिक्स है तो सिंपल सा कंसेप्ट है, at break even point your total cost is equal to your total sales. तो बस बीपी 1,20,000 है, तो 1,20,000 की टोटल कॉस्ट निकालिए. 1,20,000 के लिए टोटल कॉस्ट मतलब 1,20,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल कर दीजिए. ये जो टोटल कॉस्ट आएगी इतना हमारा टोटल सेल्स है. क्लियर? नेक्स्ट, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स if profit is 60,000. If profit is 60,000. सबसे पहले आपने कंट्रीब्यूशन निकाला है सबसे पहले प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में ही. तो फाइंड आउट व्हाट इज द पीवी रेशियो. ये फर्स्ट गिविंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर प्रॉफिट 60,000 ना. मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर प्रॉफिट रुपीज कितना 60,000. ये वेरी फर्स्ट पीवी रेशियो. अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं, आपका जो ओरिजिनल सेल्स एंड ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट है ऑन दैट बेसिस योर पीवी रेशियो contribution upon sales into 100. Your contribution was 5, sales was 20, 100. That is 25%. MOS equal to profit upon PV ratio. Your profit is 60,000. PV ratio 25%. 2,40,000. 2,40,000. क्लियर? एग्जाम का आया हुआ था ये देखो, सो सिंपल.
Any doubt? $37 हो गया, मतलब half of the chapter is over. Number 38, May 2008. A company has a fixed cost of is 90,000, sales 3 lakh and profit 60,000 required. Sales volume, if in the next period company suffered a loss of rupees 30,000, what is the margin of safety for a profit of rupees 90,000? So कंपनी की फिक्स कॉस्ट है 90,000, सेल्स है 3 लाख, प्रॉफिट है 60,000. Sales volume if in the next period company suffered a loss of 30,000. So कंपनी को अगर लॉस हुआ 30,000 तो बताइए कंपनी का सेल्स वॉल्यूम कितना होगा, और what is the margin of safety for a profit of 90,000? One lakh 1,20,000 is what? Sales. Four lakh 50,000. 4,50,000 margin of safety. Margin of safety is 1,80,000. And for the sales volume, for the loss of 30,000. 1 lakh? कैसे बताओ? Fixed cost 90,000 है और profit 60,000 है. Yes. So contribution should be 1,50,000. Correct. So what is the PV ratio? It is 50%. PV ratio आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि 3 लाख के सेल्स में आपका प्रॉफिट 60,000 है और आपका फिक्स कॉस्ट 90,000 है. इसका मतलब आपका टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1,50,000. इज इट? क्योंकि सी दैट सेल्स इज 3 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट, that gives contribution less fixed cost, which is 90,000, therefore profit 60,000. This is our basic structure. तो अगर मेरा 60,000 प्रॉफिट, देखिए यहाँ पर कोई एक फिगर है, उसमें से 90,000 जाने के बाद 60,000 बचा है. इसके बाद अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूं तो दिस विल बी 1,50,000 एंड 3 लाख में से कोई एक फिगर लेस की तो आता है 1,50,000. सो व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट? 1,50,000. कैन यू फाइंड आउट द पीवी रेशियो? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. चलो पहले इतना लिख लो आप. So this contribution is my balancing figure. मैंने रिवर्स कैलकुलेशन किया हुआ है. ये हो गया. अब देखिए एग्जाम में ऐसे लिखते नहीं आएगा आपको. एग्जामिनर को क्या पता चलेगा आपने कहां से कौन सा तीर चलाया है ना. सो ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. सो एग्जाम में आप कैसा लिखेंगे, देखिए ये जो आपने उल्टा लिखा है ना, ठीक है, मतलब जो ऐसा कैलकुलेशन किया है, सो आपको पहले लिखना पड़ेगा प्रॉफिट 60,000 प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन 1,50,000. सो राइट डाउन प्रॉफिट 60,000
and fixed cost 90,000. Therefore, contribution 1,50,000. Sales 3 lakh. Now find out PV ratio. It is contribution upon sales into 100. Your contribution is 1,50,000 for the sales of rupees 3 lakh into 100. It is 50%. 50%. Got it? बस फिर आगे क्या है, सब सिंपल ही तो है. उसमें रिक्वायर्ड क्या है, ये तुम लोग सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पर. सेल्स वॉल्यूम इफ इन द नेक्स्ट पीरियड द कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ 30,000. सो कंपनी को अगर 30,000 रुपए का लॉस हुआ तो बताइए सेल्स कितना हुआ. देखिए कंपनी को लॉस हुआ 30,000. इसी का मतलब कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना है. कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 60,000 ना, क्योंकि कंपनी की फिक्स कॉस्ट 90,000 है. अरे आपको लॉस हुआ इसका मतलब क्या है, यू आर अनेबल टू रिकवर योर फिक्स कॉस्ट बाय 30,000. कंपनी को 30,000 का लॉस हुआ, इसी का मतलब कंपनी इज अनेबल टू रिकवर इट्स फिक्स कॉस्ट बाय 30,000. इट मींस कंपनी रिकवर्ड ओनली 60,000 एज अ कंट्रीब्यूशन. तो 60,000 कंट्रीब्यूशन के लिए कंपनी का सेल्स क्या होगा, 50% पीवी रेशियो हमारा, सो इट इज 1,20,000. सो राइट डाउन sales for loss rupees 30,000. For loss rupees 30,000. देखिए लॉस इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन. Fixed cost minus contribution. So my loss is 30,000. My fixed cost is 90,000. Contribution don't know. Therefore, contribution equals to, ये इधर गया 30,000 इधर, 90,000 minus 30,000 is equal to 60,000. Therefore, sales for contribution rupees 60,000 is equal to 60,000 divided by 50%. 1,20,000. And number 2 है margin of safety for profit rupees 90,000. So simple. M is equal to profit upon PV ratio. Your profit is 90,000 by PV ratio 50%. It's 1,80,000.
चलो नेक्स्ट नंबर 39